Hello students, good morning. How are you all? I think you all are fine. So let's start our today's lecture. In the last lecture, I think I was given a exercise 6.2 sixth first sum which I give in a homework. Okay, so let's start our first sum, exercise 6.2, question 6b. Find the intervals in which the function fx is equal to 10 minus 6x minus 2x square strictly increasing and strictly decreasing. So answer here, fx is equal to 10 minus 6x minus 2x square be given function differentiating with respect to x. We get f dash of x is equals to, this is the differentiation of constant function which is 0, minus 6 minus 4x. Now for f is increasing or decreasing, take f dash of x is equals to 0. So that implies minus 6 minus 4x is equal to 0. Taking 2 as a common, minus 3 minus 2x is equals to 0. So that implies x is equals to minus 3/2. So जो हमें फोकस करना है वो कौन से फंक्शन एफ डेस एफ पे फोकस करना है, ये एफ डेस ऑफ एक्स पे हमें फोकस करना है. मतलब ये जो भी टर्म है बराबर, ये टर्म हमें क्रिएट करना है. सो नाउ प्लॉट दिस वैल्यू ऑन नंबर लाइन. प्लस इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव, 0, 1, 2, minus 1, minus 2, and minus 3/2, that means minus 1.5. Minus 1.5 is here. Minus 3/2. That means we have two intervals. The first one is x less than minus 3/2 and the another is x greater than minus 3/2. And in interval form, minus infinity, comma minus 3/2 and minus 3/2, comma infinity. Now let's see the first interval. For x less than minus 3/2, x less than minus 3/2, multiplying by 2 on both the side of inequality, we get 2x less than minus 3, because here 2 both are cancelled. Now multiply by negative sign on both the side of inequality, because we have to create this kind of form. So we must multiply by negative sign in this inequality. So we get minus 2x. When we multiplying by negative sign on the inequality on both the side of inequality, then the sign of inequality will be changed. So the less than inequality convert into greater than, and here is 3. इसका मतलब क्या है कि हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी के दोनों साइड, सो इनइक्वालिटी की जो साइन होगी वो चेंज हो जाएगी. नाउ सब्सट्रैक्टिंग बाई 3, दैट मीन्स minus 3 minus 2x greater than 0. और ये क्या है हमारा, f dash of x greater than 0. Hence f is strictly increasing in minus infinity, comma minus 3/2. समझ में आ गया. अभी हम बात करते हैं दूसरे इंटरवल की. फॉर x greater than minus 3/2, so x greater than minus 3/2, multiplying by 2 on both the sides of 2x greater than minus 3. Now multiply by minus sign, the inequality will be changed. So minus 2x less than 3. Now subtracting by 3, so minus 3 minus 2x, which is less than 0, so which is our f dash of x less than 0. Hence f is strictly decreasing in minus 3/2, comma infinity. So I think you understand. समझ में आ गया आपको, एक बार देख लो.
नाउ द नेक्स्ट सम इज एक्सरसाइज 6.1 सिक्स्थ नंबर डी, मतलब फोर्थ सम। अब आपको क्वेश्चन हो रहा होगा कि हम तो थर्ड सम आए थे, मतलब सी आए थे ना, तो सी पर से डायरेक्ट हम डी पर कैसे पहुंच गए। उसका रीज़न ये है कि हमने जो अभी बी वाला सम किया था, सेकंड सम, क्वेश्चन 6 का सेकंड सम बराबर सेम एज जो डी है फोर्थ सम, सेम एज है, इसलिए ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, सेम एज प्रीवियस, ओके। जो 6.2 का क्वेश्चन 6 है उसका बी है ना, उसको ही आपको फॉलोअप करना है, ओके। उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 का 6 का सी नंबर थर्ड, ओके। सो जो हमने स्किप किया था वो हम यहाँ पे करेंगे। आंसर हियर fx is equals to minus 2x cube minus 9x square minus 12x and plus 1 be given function. Differentiating with respect to x, we get f dash of x is equals to minus 6x square minus 18x minus 12. Now for f is increasing or decreasing, take f dash of x is equals to 0, so that implies minus 2x cube minus 9x minus 6x square minus 18x and minus 12 is equals to 0. Taking minus 6 as a common, we get minus 6 into bracket x square plus 3x plus 2 is equals to 0. So that implies, अब ये जो 6 है ना, वो इक्वल के मैं उधर साइड शिफ्ट कर देता हूँ तो वो 0 हो जाएगा, और माइनस साइन को मैं एज इट इज ही रखता हूँ, और इसका जो आंसर आएगा 2 1 ज़ा 2 एंड 2 + 1 दैट मीन्स 3। सो हमें फैक्टर्स क्या मिलेंगे, x + 1 और x + 2 इज इक्वल्स टू 0। अभी आपको क्वेश्चन हो रहा है कि यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन क्यों उधर 0 के साथ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, बराबर ना, मतलब इक्वल के उधर साइड क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर दिया, तो उसका रीज़न आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सो दैट इम्प्लाइज एक्स की वैल्यूज हमें मिलेगी -1 एंड एक्स इज इक्वल्स टू -2। सो प्लॉट दिस टू नंबर्स ऑन नंबर लाइन, वी गेट प्लस इन्फिनिटिव minus infinitive 0 1 2 -1 -2 -3 and 3। so x is equal to -1 and x is equal to -2, मतलब हमारे पास कौन से इंटरवल मिलेंगे, x लेस देन -2 -2 लेस देन x लेस देन -1 एंड x ग्रेटर देन -1। सो माइनस इन्फिनिटिव कॉमा -2 -2 -1 एंड -1 इन्फिनिटिव। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले इंटरवल की, और यहाँ पे पीछे तो पेज ख़त्म हो गया, तो हम नए पेज को वेलकम करते हैं और बुलाते हैं, प्लीज़ कम नया पेज, प्लीज़ कम अ न्यू पेज, रफ पेज, ब्लैंक पेज। सो दिस इज कम अवर। सबसे पहले इंटरवल की बात करते हैं। पहला वाला इंटरवल हमारे पास क्या है, नंबर 1 x लेस देन -2 फॉर x लेस देन -2। चलो हमें ये दो फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं ना, x + 1 और x + 2 का इंडिविजुअल हमें चेकआउट करना है कि विच इज़ ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो ये इनों को दो बार हम ले लेते हैं, टेकिंग 2 टाइम्स x लेस देन -2 एंड x लेस देन -2। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, +1 on both the side, so we get x + 1 less than -1 because -2 + 1 we get -1। the value of x + 1 which is less than -1 that means -1 से लेस नंबर है, मतलब छोटा नंबर है, मतलब नेगेटिव नंबर है, तो ऑब्वियसली 0 से भी छोटा ही होगा। सो दैट इम्प्लाइज x + 1 which is less than 0। समझ में आया, समझ में आया। x + 1 का आंसर -1 से लेस नंबर है, मतलब छोटा नंबर, मतलब नेगेटिव साइड जा रहा है, बराबर ना, नेगेटिव साइड है, इसका मतलब 0 से भी छोटा ही होगा। समझ में आ गया, ओके। अभी हम x + 2 की बात करते हैं। सो x + 2 लेस देन 0,
समझ में आया, क्योंकि माइनस टू प्लस टू जीरो। अब ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू विच इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों फैक्टर्स का आंसर हमें नेगेटिव मिला। अभी दोनों फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव साइन मिलेगा। अभी हमें क्या करना है, जो मैंने माइनस साइन यहाँ पे रखा था, हमें कौन से टर्म पर फोकस करना है उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। हमें ये टर्म पर फोकस करना है, हमारा जो एफ डेस ऑफ एक्स हमें जो लाना है वो हमें ये लाना है, इस पर हम फोकस करेंगे। सो नाउ मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव साइन ऑन बोथ द साइड ऑफ इनइक्वालिटी वी गेट माइनस इंटू एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू, देन द इनइक्वालिटी मस्ट बी चेंज, कन्वर्ट इनटू ग्रेटर देन, कन्वर्ट इनटू लेस देन। समझ में आ रहा? अभी आपको पता चलेगा कि ये हमारा क्या है, तो हमारा एफ डेस ऑफ एक्स है लेस देन जीरो। इसका रीजन कि अगर पॉजिटिव होता तो हमें कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि 6 पॉजिटिव था, उसको हमने जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इक्वल के उधर साइड मल्टीप्लाई कर दिया। पर नेगेटिव जो साइन है ना उसको एज इट इज ही रखा। उसका रीजन कि आप देख सकते हैं, अगर आप माइनस को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करके मतलब वो निकाल देते माइनस साइन, यहाँ से आप माइनस साइन निकाल देते तो आपका जो फर्स्ट इंटरवल में आंसर होता ना वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आता, बराबर, विच इज रॉन्ग, जो कि रॉन्ग होता आपका आंसर, बराबर। इसलिए हमने नेगेटिव साइन एज इट इज रखा, बराबर। फिर हमने क्या किया, दोनों फैक्टर का इंडिविजुअल चेक किया, दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला, तो ग्रेटर देन मिला, मतलब पॉजिटिव मिला, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिला। पर जैसे ही हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में कन्वर्ट हो गया। और आप देख सकते हैं बुक में आंसर आपको मिलेगा कि ये जो फर्स्ट इंटरवल है मतलब माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस टू के लिए आपका जो आंसर है वो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। सो हेंस एफ इज strictly decreasing in माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस टू। अभी हम बात करते हैं सेकंड इंटरवल फॉर माइनस टू लेस देन एक्स लेस देन माइनस वन। यहाँ तो दो पॉसिबिलिटी एज इट इज है, माइनस टू लेस देन एक्स एंड एक्स लेस देन माइनस वन। प्लस टू करना है मतलब माइनस टू प्लस टू जीरो लेस देन एक्स प्लस टू। इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, मतलब घुमा देते हैं, रोटेट कर देते हैं। सो हम क्या मिलेगा, एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस वन, एक्स प्लस वन लेस देन जीरो। तो आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव आया और एक नेगेटिव आया, तो दोनों का मल्टीप्लाई हमें क्या मिलेगा, विच इज लेस देन जीरो। क्योंकि आपको पता ही है कि एक नेगेटिव साइन होगा और सभी पॉजिटिव होंगे, बराबर ना। आपके पास एक नेगेटिव होगा और उसके अलावा बाकी सब पॉजिटिव होंगे, तो वो जो नेगेटिव वाला था ना वो सभी को नेगेटिव कर देगा। आपको पता ही होगा कि एक टोपली के कैरी होंगे, कैरी मतलब मैंगोस, बराबर, आम की बात कर रहा हूँ, कि एक आम बिगड़ा हुआ होगा और बाकी सब ठीक आम होंगे, तो जो बिगड़ा हुआ आम है ना वो सभी आम को बिगाड़ देगा। हमारे गुजराती में कहावत है कि खराब कैरी એ બાકી બધા કેરીને બગાડી નાખે, ટોપલાની એક ખરાબ કેરી બાકી બધા સારા કેરી હોય તો તે બધાને બગાડી નાખે, ऐसा गुजराती में कहवाते हैं, बराबर ना। अभी हम क्या करेंगे, नेगेटिव से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो माइनस इंटू एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू विच इज ग्रेटर देन जीरो, दैट्स इट। आप देख सकते हैं दूसरे इंटरवल में जो नेगेटिव का मल्टीप्लाई करने के पहले हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया था और मल्टीप्लाई करने के बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आप देख सकते हैं ये आंसर आपका बुक में देंगे सही होगा, ग्रेटर देन जीरो। हेंस एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन माइनस टू कॉमा माइनस वन। अभी हम बात करते हैं लास्ट इंटरवल की, फॉर एक्स ग्रेटर देन माइनस वन। उसको दो बार हम पॉसिबिलिटी ले लेंगे। सो एक्स ग्रेटर देन माइनस वन एंड एक्स ग्रेटर देन माइनस वन। अभी यहाँ पे हम प्लस वन करेंगे, एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पे एक्स प्लस टू करेंगे, एक्स प्लस टू ग्रेटर देन माइनस वन प्लस टू, दैट मीन्स प्लस वन। एक से बड़ा है मतलब जीरो से भी बड़ा ही होगा। सो एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। तो आप देख सकते हैं ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा, विच इज ग्रेटर देन जीरो। अभी हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो माइनस इंटू एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, उसका आंसर हमें क्या मिलेगा, लेस देन मिलेगा। सो ये हमें क्या है, तो एफ डेस ऑफ एक्स लेस देन जीरो। हेंस एफ इज स्ट्रिक्टली
डिक्रीजिंग इन किस में, तो -1, इन्फिनिटिव में। सो समझ में आ गया माइनस साइन का इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, सो लेट सी द नेक्स्ट सम इज एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 6 ई, नंबर ई मतलब फिफ्थ सम। आंसर हियर fx is equals to x plus 1 whole cube x minus 3 whole cube be given function differentiating with respect to x, we get what we get f dash of x is equal to, here we apply the rule of product in a differentiation, मतलब differentiation का हम product rule यहाँ पे apply करेंगे। So x plus 1 whole cube which is a constant and the derivative of 3x minus 3 whole square, और इसका आंसर हमें 1 ही मिलेगा, प्लस x minus 3 whole cube which is a constant and the derivative of x plus 1 whole cube which is 3 into x plus 1 whole square, and again the derivative of x plus 1 which is 1. Now taking 3x plus 1 whole square and x minus 3 whole square as a common, we get the remaining term x plus 1 and here x minus 3. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना, इसमें से मैंने 3 कॉमन आउट ले लिया, x प्लस 1 होल स्क्वायर क्यूब था उसमें से स्क्वायर मैंने कॉमन आउट ले लिया और x माइनस 3 होल स्क्वायर कॉमन आउट ले लिया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, रिमेनिंग टर्म हमें क्या मिलेगा, x प्लस 1 मिलेगा, और उसी तरह सेम एज यहाँ पे हमें x प्लस 3 मिलेगा। सो दैट इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर, और यहाँ पे मुझे मिलेगा 2x माइनस 2, और यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेंगे। सो फाइनली हमें एफ डैश ऑफ x क्या मिलेगा, 6 इंटू ब्रैकेट x माइनस 1 x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड x माइनस 3 होल स्क्वायर। नाउ फॉर f इज इंक्रीजिंग और decreasing, take f dash of x is equals to 0, so that implies 6 into bracket x minus 1 x plus 1 whole square and x minus 3 whole square is equals to 0. 6 obviously वो तो 0 ही हो जाएगा, जो बाकी के टर्म है x minus 1 is equals to 0, x plus 1 whole square is equals to 0 and x minus 3 whole square is equals to 0. सो हमें फाइनली आंसर क्या मिलेंगे, x इज इक्वल टू पहला वैल्यू 1 मिलेगा और यहाँ पे स्क्वायर उधर जाएगा इक्वल क्या, तो 0 रेस टू ऑफ दैट मीन्स 0 ही होगा। सो x इज इक्वल टू -1 एंड सिमिलरली x इज इक्वल्स टू 3 यहाँ पे मुझे मिलेगा। सो वी गेट दिस 3 zeros, उसको हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर देते हैं। और जो हमें लास्ट सेकंड स्टेप पे फोकस करना है वो कौन सा स्टेप है, ये वाला स्टेप। 6 को तो हम ऑब्वियसली निगलेक्ट ही करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 ही है। प्लस इन्फिनिटिव एंड माइनस इन्फिनिटिव, 0 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3, x इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू 1 है और x इज इक्वल टू -1 है। सो वी द इंटरवल x लेस देन -1 -1 लेस देन x लेस देन 1 1 लेस देन x लेस देन 3 एंड x ग्रेटर देन 3, और इंटरवल फॉर्म में -∞, -1 -1, 1 1, 3 एंड ऑब्वियसली 3, इन्फिनिटिव। तो सबसे पहला इंटरवल आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 4 इंटरवल्स यहाँ पे मिले। तो सबसे पहले इंटरवल की हम बात करते हैं, कौन सा वाला है, फॉर x लेस देन -1। तो x लेस देन -1 3 फैक्टर्स हमें यहाँ पे क्रिएट करने हैं, x लेस देन -1 एंड x लेस देन -1। तो सबसे पहले ऑब्वियसली -1 करेंगे, x -1 लेस देन -2 विच इज़ ऑब्वियसली लेस देन 0, क्योंकि -2 से क्या है, लेस नंबर है, मतलब छोटा नंबर है, तो ऑब्वियसली 0 से भी छोटा ही होगा। सो दैट इम्प्लाइज x -1 लेस देन 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, x + 1 लेस देन 0, 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव नंबर है। अभी इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। सो x + 1 होल स्क्वायर, तो ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन 0 होगा,
क्योंकि एक्स प्लस वन का आंसर क्या है, तो -1, -2, -3 ऐसे नंबर्स है ना। अभी उसका हम स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, तो ऐसे हमें नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, तो ऑब्वियसली विच इज ग्रेटर देन 0 होगा। और थर्ड की बात करेंगे तो क्या करेंगे हम, x -3 लेस देन -1 -3 दैट मीन्स -4। अभी -4 से ये नंबर छोटा है तो ऑब्वियसली 0 से भी छोटा ही होगा, बराबर। सो दैट इम्प्लाइज x -3 लेस देन 0, सो दैट इम्प्लाइज x -3 होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी हमें पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि x -3 का आंसर 0 से छोटा है, बराबर ना। 0 से छोटा है मतलब कि नेगेटिव नंबर है। अभी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली वो फाइनली हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, बराबर। तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 मिलेगा। ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, पर देखने की बात क्या है, तो ये हमारा नेगेटिव है, मतलब एक हमारा नेगेटिव सभी को नेगेटिव कर देता है। सो दैट इम्प्लाइज मल्टीप्लाइंग दिस 3 फैक्टर्स वी गेट x -1, x plus 1 whole square and x minus 3 whole square which is less than 0. So that implies f dash of x which is less than 0. Hence f is strictly decreasing in किस में, -∞, -1 में। चलो यहाँ पे पीछे भी कंप्लीट हो गया, ये पेज भी फिनिश। तो ये पेज को मैं ये साइड पे रखता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है ये 3 इंटरवल के लिए। सो आपके सामने पेश किया जा रहा है ब्लैंक पेज फॉर अनदर इंटरवल। द सेकंड इंटरवल विच इज, कौन सा है हमारा सेकंड इंटरवल, -1 लेस देन x लेस देन 1, फॉर -1 लेस देन x लेस देन 1। सो -1 लेस देन x ये एक पॉसिबिलिटी ले लेता हूँ, x लेस देन 1 ले लेता हूँ, और x लेस देन 1 अगेन दूसरा ऐसे ही ले लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम, +1 करेंगे, तो यहाँ पे -1 + 1 0 लेस देन x + 1। इसको थोड़ा घुमा देते हैं। सो x + 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0, और इसका हम स्क्वायर करेंगे तो वो भी ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 ही आएगा। अभी इसकी बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, x -1 लेस देन 0, क्योंकि 1 - 1 0। सो इसका आंसर हमें नेगेटिव मिला। अभी इसकी बात करेंगे तो क्या करेंगे, x -3 करेंगे विच इज़ लेस देन 1 - 3 दैट मीन्स वी गेट -2। -2 से छोटा है, इसका मतलब 0 से भी छोटा ही होगा। सो दैट इम्प्लाइज x -3 लेस देन 0। अभी x -3 का आंसर नेगेटिव है, 0 से छोटा है, तो ऑब्वियसली आप उसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव ही होगा। सो x -3 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। सो you can observe, students, these two terms are positive but the one is negative. So obviously our final answer, that means the multiplication of these 3 factors which is we get negative. So therefore x -1 x + 1 whole square, x -3 whole square which is less than f dash of x less than 0. Hence f is strictly decreasing in -1, 1। अभी हम थर्ड इंटरवल की बात करते हैं। सो फॉर 1 लेस देन x लेस देन 3, सो 1 लेस देन x लेस देन 3 एंड 1 लेस देन x ये ले लेते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 करेंगे ऑन बोथ द साइड, सो 0 लेस देन x -1। सो दैट इम्प्लाइज x -1 ग्रेटर देन 0। चलो पहला का आंसर हमें फाइनल हो गया, पॉजिटिव आया। अभी दूसरे की बात करते हैं, यहाँ पे हम क्या करें, -3 करेंगे। सो x -3 लेस देन 0, 0 से छोटा है, x -3 का आंसर 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव नंबर है। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सो x -3 वी गेट होल स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0, एंड द लास्ट वन विच इज +1 करेंगे, सो 1 + 1 दैट मीन्स 2 लेस देन x + 1। इसको थोड़ा घुमा देते हैं, x + 1 विच इज़ ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा है मतलब 2 से बड़ा वाला नंबर है तो ऑब्वियसली 0 से बड़ा ही नंबर होगा। अभी 0 से बड़ा है तो ऑब्वियसली x + 1 आप होल स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर भी ऑब्वियसली 0 से बड़ा ही होगा। समझ में आ रहा है, दिमाग में घुस रहा है? ओके, ये पॉजिटिव और ये तीनों के तीनों पॉजिटिव हमें मिले। देयरफॉर x -1 x + 1 होल स्क्वायर एंड x -3 होल स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन 0। So that implies f dash of x which is greater than 0. Hence f is
strictly increasing in किस में 1,3 में, कौन से इंटरवल में, अभी हमारा लास्ट इंटरवल कौन सा है, सो x greater than, for x greater than 3, so x greater than 3, x greater than 3 and x greater than 3। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, सो x -1 greater than 3 - 1 दैट मीन्स 2, 2 से बड़ा है मतलब 0 से बड़ा ही होगा, सो x -1 greater than 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, x +1 greater than 4, 4 से बड़ा है ऑब्वियसली 0 से बड़ा ही होगा, सो x +1 होल स्क्वायर करेंगे तो उसका भी आंसर 0 से बड़ा ही आएगा। अभी लास्ट x -3 विच इज ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स x -3 होल स्क्वायर विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। तीनों का मल्टीप्लीकेशन ऑब्वियसली धन, ये भी पॉजिटिव 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 दैट मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फाइनली वी गेट पॉजिटिव। x -1 x +1 whole square and x -3 whole square which is greater than 0, so that implies f dash of x which is greater than 0, hence f is strictly increasing in 3, infinitive। That's it। समझ में आ गया? सो एक बार शांति से सॉल्यूशन बिना आवाज किए, बिना किसी को डिस्टर्ब किए देख लो। Exercise 6.2 seventh sum, show that y is equal to log of 1 plus x minus 2x upon 2 plus x where x greater than -1 is an increasing function of x throughout its domain। That means हमें क्या प्रूव करना है, जो हमें फंक्शन दिया है मतलब fx इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू हमें जो फंक्शन दिया है वो उसके डोमेन पर इंक्रीजिंग फंक्शन हमें ऐसा प्रूव करना है। और डोमेन आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन में दिया ही है, ये x ग्रेटर देन -1 दिख रहा है ना, ये आपका डोमेन ही है, मतलब आपकी x की रेंज, डोमेन का मीनिंग क्या है कि द रेंज ऑफ x, मतलब x की लिमिट्स, समझ में आ रहा है? रेंज डोमेन का मतलब जो हमें x की लिमिट्स देते हैं ना, बराबर, जो आपको क्वेश्चन में दिया है कि मतलब आपके x की वैल्यूज आपको कौन सी लेनी है, सो -1 से बड़े नंबर, -1 से बिगर नंबर, बराबर, ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन -1, मतलब आप कौन से नंबर ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 3 4 ऐसे समथिंग ले सकते हैं, मतलब 0 भी आप ले सकते हैं, 0 भी इंक्लूड होगा क्योंकि -1 से बड़े नंबर में से 0 भी एक आता है। समझ में आ गया? तो हमें इसके लिए मतलब x ग्रेटर देन -1 के लिए हमें क्या प्रूफ करना है, जो हमारा फंक्शन है इंक्रीजिंग है ऐसा हमें प्रूफ करना है। सो लेट सी। ओके, आंसर हियर fx is equals to y is equals to log of 1 plus x minus 2x upon 2 plus x where x greater than -1 be given function। Differentiating with respect to x we get what we get f dash of x is equals to the differentiation of log of 1 upon x which is log of 1 plus x which is 1 upon 1 plus x and again the derivative of 1 plus x which is we get 0 plus 1 that means 1, जो मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। and now we apply the division rule in the derivative, so we get the denominator which is constant 2 plus x and the derivative of numerator we get 2 and minus numerator which is constant 2x and the derivative of denominator which is we get 1 because the derivative of 2 which is 0 and the derivative of x which is 1 and denominator में जो denominator है उसका square। now simplify this, we get 1 upon 1 plus x and into bracket 2 is going in bracket, we get 4 plus 2x minus 2x divided by 2 plus x whole square, so minus 2x plus 2x cancel, 1 upon 1 plus x minus 4 upon 2 plus x whole square, taking LCM we get 2 plus x whole square minus 4 into 1 plus x divided by 1 plus x 2 plus x whole square, so the next step is 4 plus 4x, express this
expand this expression a plus b whole square, that means a square plus 2ab plus b square, we get minus 4x divided by 1 plus x and 2 plus x whole square. So these both are cancelled. So finally f dash of x, which we get x square divided by 1 plus x and 2 plus x whole square. Now for x greater than -1, so start from x greater than -1. x की वैल्यू हमें -1 से बड़ी लेनी है, बराबर ना? ओके, तो ऑब्वियसली हम x की वैल्यू 0 भी एक ले सकते हैं. तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे सो ऑब्वियसली इसका आंसर ग्रेटर इक्वल टू 0 मिलेगा. क्यों ग्रेटर इक्वल टू 0 मिलेगा? क्योंकि हमें जो x की वैल्यूज लेनी है वो -1 से बड़ी लेनी है. -1 से बड़ी मतलब हम एक x की वैल्यू 0 भी ले सकते हैं. मतलब यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो उसका आंसर एक 0 इक्वल तो आएगा. और उसके अलावा हम जो भी नंबर यहाँ पे पुट करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, सो वी गेट अ पॉजिटिव नंबर, दैट मीन्स जो 0 से बड़ा होगा. एंड x ग्रेटर देन -1 एंड x ग्रेटर देन -1. चलो अभी हम ये दूसरे फैक्टर की बात करते हैं. +1 करेंगे सो x +1 ग्रेटर देन 0. एंड थर्ड की बात करते हैं x +2 करेंगे विच इज ग्रेटर देन -1 + 2 वी गेट 1. एक से बड़ा है ऑब्वियसली 0 से बड़ा ही होगा. सो दैट इम्प्लाइज x +2 क्या है, सो 0 से बड़ा है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली वो भी 0 से बड़ा ही होगा. अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे. देयरफॉर x +1 एंड x +2 होल स्क्वायर विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगा. अभी ये जो इसका जो आंसर है मतलब x +1 और x +2 होल स्क्वायर का आंसर पॉजिटिव नंबर है. पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 समथिंग नंबर है. अगर उसको हम डिनोमिनेटर में भी रखेंगे, डिनोमिनेटर में हम पुट करेंगे मतलब 1/1 करेंगे, 1/2 करेंगे, 1/3 करेंगे, या कोई भी नंबर हम पॉजिटिव नंबर डिनोमिनेटर में हम रखेंगे, बराबर ना, पुट करेंगे. और उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे ना तो हमें जो आंसर मिलेगा वो ऑब्वियसली क्या मिलेगा, तो पॉजिटिव ही मिलेगा. मतलब x + 1/1 x +1 एंड x +2 होल स्क्वायर विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इसका आंसर अगर पॉजिटिव हो सकता है तो ऑब्वियसली उसको हम डिनोमिनेटर में भी रख देंगे तो ऑब्वियसली उसका भी आंसर में क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा. अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो देयरफॉर x² डिवाइडेड बाय x +1 एंड x +2 होल स्क्वायर विच इज ग्रेटर इक्वल टू 0 मिलेगा. क्योंकि हम x की एक वैल्यू 0 भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं. अगर इसमें हम x = 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा तो सभी 0 हो जाएंगे. मतलब ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0. और उसके अलावा कोई भी हम x ग्रेटर देन -1 में से कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे 1/1 इसमें तो उसका आंसर क्या होगा, 0 से बड़ा नंबर होगा. समझ में आ गया? ओके, बिकॉज ऑफ स्क्वायर. और ये क्या है हमारा, दैट इम्प्लाइज f dash of x which is greater equal to 0. सो फाइनल आंसर हम लिख देंगे. Hence f is increasing, f is an increasing for x greater than -1. Hence f is an increasing for इंक्रीजिंग फंक्शन लिख देते हैं. Hence f is an increasing function for x greater than -1. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू, क्योंकि ये ग्रेटर इक्वल टू की कंडीशन है. इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन ग्रेटर इक्वल टू 0. जो आपका f dash of x होगा उसका आंसर क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा. तो वो हमारी इंक्रीजिंग की कंडीशन है. अगर स्ट्रिक्टली अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन में तो ऑब्वियसली उसका आंसर ग्रेटर देन 0 ही आएगा. तो समझ में आ रहा है? तो हमें क्वेश्चन में बोला था कि हमें f dash of x का आंसर ग्रेटर इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करना था. और ऑब्वियसली हमें जो x की जो वैल्यू थे मतलब जो इनडायरेक्टली हम बोलेंगे तो हमें इंटरवल ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही है. क्या है इंटरवल हमारा, x ग्रेटर देन -1. मतलब सिंपली हमें क्या करना है, जस्ट f dash of x फाइंड आउट करना है. ओके, और उसको हमें x ग्रेटर देन -1 से स्टार्टअप लेना है. और स्टेप बाय स्टेप हमें करने के बाद हमारा जो आंसर होगा, ओके, f dash of x ग्रेटर इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करना है. तो ये जो स्टेप्स मैंने किए हैं आपको पता तो चल ही गया होगा और समझ में आ गया होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो एक बार शांति से देख लो. ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. आज हमने थोड़े लगभग मे बी 4 5 और 6 सम्स जैसे कंप्लीट किए हैं. आई थिंक एक मैंने आपको होमवर्क में दिया था
जो कि मैंने आपको जो समझाया था सेम एज वैसा ही था। और उसके अलावा हमने 3-4 सम्स किए, सभी इंपॉर्टेंट सम स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल रिलेटेड टू एग्जाम्पल। तो आज यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमें एफ डेस ऑफ एक्स पर फोकस करना है, तो हमारा एफ डेस ऑफ एक्स ये होगा, बराबर ना। तो ये टर्म हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो इसी के साथ आज हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम जहाँ स्टॉप किया था वहीं से हम स्टार्ट लेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।